Thank you, everyone. First of all, as DG sir could not be here due to some medical reasons, I would like to express my gratitude on his behalf that in this forum we will be sharing our concerns, Rajasthan Police concerns relating to road safety. This is a very, I'll say, wide platform provided to us because dealers from all over Rajasthan are here. So we'd like to share what are our concerns. These also belong to you. ये आपके भी concerns हैं, not only as dealers, but as citizens of this country, of this state, because all of us get affected by road accidents. So this is just a small talking point from my side. These data that you see are from Ministry of Road Transport, India, and this data is of 2024. I would just like to highlight few points that in 2024, number of accidents were 4.8 lakh, which is a massive number. It just goes to show that in every 20 minutes, there are 55 accidents. So by the time I finish this session, मैं अगर 10-15 मिनट बोलूँगी तो 20 accidents all over India हो रहे हैं, जिसमें आप injuries देख रहे हैं 4.6 lakh injuries. These are minor, major injuries that may affect you for all your life. तो इनसे उभरना, इलाज, पूरी एक ज़िंदगी का खर्चा हो जाता है. साथ ही आप fatalities देखिए, 1.72 lakh Indians die due to road accidents. In this 4.8 lakh accidents जो हुए हैं, 45% accidents में two-wheelers involved थे. Two-wheelers जो drive करते हैं, उनकी death हुई है. तो this just goes to show कि this section is the most vulnerable where road accidents are concerned. आप बोलेंगे we are four-wheeler dealers, but मैं उस point पे आऊँगी कि why I am sharing these data with you. 66% of the people who were involved in road accidents were victims aged between 18 to 45. So just look at the demography. Our human capital, youth, in the prime of their lives, are losing, their lives are being wasted due to accidents. इसमें से भी 10K is less than 18 years, so वो child death है. 10,000 children die annually. एक बहुत गंभीर विषय है कि 11,890 accidents were caused by minors. That means people like you and us, me, giving our vehicles to our children below 18 years age to drive. So that formed around 11,890. Massive number. The data that I showed you, वो एक national data को capture करता है, राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र में जितने accidents हुए हैं. ये हमारे राजस्थान का एक छोटा सा data है जो मैं आपके लिए दिखाना चाह रही हूँ कि 23 में हमारे accidents इतने थे 24,705, injured उतने ही थे, थोड़ा ही कमी थी, and deaths were 11,000. Similarly, 24 में accidents थोड़े बढ़ गए, इंजरी कम हो गई, डेथ्स इक्वलेंट ही थे. और 2025 में आप एक्सीडेंट्स देख रहे हैं कि ये थोड़े कम हुए हैं, इंजरी भी कम हुई है, बट डेथ्स हैज़ इंक्रीज्ड. दिस गोज़ टू शो कि काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट्स हुए होंगे जिसमें मल्टीपल विक्टिम्स होंगे. मेरी लास्ट पोस्टिंग आई वॉज जयपुर ग्रामीण SP, तो एवरी 2-3 months I have in my district there were 4 highways, 1 national expressway, and every 2-3 months there would be a major accident in which in one accident 4 to 5 people, 8 people, they will lose their lives. आगे slides में मैं आप उसका कारण भी बताऊंगी और हमारी आप लोगों से क्या अपेक्षा है वो भी बताऊंगी. ये कुछ रीजंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने ये रीजंस आए हैं ऑल ओवर इंडिया. तो आप देखेंगे कि ओवर स्पीडिंग हैपन्स टू बी द सिंगल लार्जेस्ट किलर इन रोड एक्सीडेंट्स. इनफैक्ट more than 50% of accidents involve
over speeding and rash driving. Second is wrong side driving, which is a part of rash driving. Usually क्या होता है, जो national data आया है उसमें ये है कि 24 और 25 के बीच में 11% जो एक्सीडेंट्स में कमी आई है वो नेशनल हाईवेज़ में आई है. उसका कारण ये है कि ITMS के कैमरास लग गए हैं. एवरी एनफोर्समेंट एजेंसी लाइक पुलिस, ट्रैफिक, रोड ट्रांसपोर्ट, एवरीवन इज फोकसिंग ऑन हाईवेज़ कि हाईवेज़ पे डेथ्स कम हो. बट कोटर्मिनसली स्टेट रोड्स और ओपन एरियाज़ में भी इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वलेंटली. अगर 50% के एक्सीडेंट्स आपके नेशनल हाईवे में होते हैं तो 50% ही आपके एक्सीडेंट स्टेट हाईवेज़ में भी हो रहे हैं. ये भी एक मेजर कारण है. अभी आपके ITMS के कैमरास लग जाते हैं नेशनल हाईवेज़ में तो हमें पता है किस पॉइंट पे कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, वरना घर पे चलान आ जाएगा. बट वही लोग जब स्टेट रोड्स पे चलाते हैं या ओपन एरियाज़ में चलाते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी लो है तो वो उतना ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी रैश ड्राइविंग से. One of the reason is poor road infrastructure also, but surprisingly, this is not top 5 reason. Top 5 reason तो हम ही हैं. One of the major reason ये भी है कि आप देखिए किस तरह से something registered vehicles में increase हुआ है. Something very interesting for you guys कि 4 times या 3 times इंक्रीज़ हो रहा है. एंड दिस इज़ 2024 का डेटा. तो 2025 में आई एम श्योर ये 3 times इंक्रीज़ हो गया होगा. अब मैंने अपने टॉकिंग पॉइंट्स में मैं यही कहना चाहती थी, मैं बस थोड़ा फोकस लाना चाहती थी कि कितने मैसिव प्रॉब्लम से हम गुज़र रहे हैं और उसकी क्या मतलब अहमियत है. तो इसका सॉल्यूशन भी यही है कि एनफोर्समेंट एंड पब्लिक डिसिप्लिन. मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारा एरिया है फोकस करने का, तो एनफोर्समेंट में तो पुलिस आ जाती है, RTO विभाग आ जाता है और एजेंसीज आ जाती हैं, और पब्लिक डिसिप्लिन में हम सब आ जाते हैं. जैसे कि मैं बता रही थी कि जयपुर ग्रामीण इज सराउंडेड बाय हाईवेज़. तो बहुत बार होता था कि कोई मनोहरपुर से दौसा जा रहे हैं, कोई जयपुर से अजमेर हाईवे में जा रहे हैं, और जो एक्सीडेंट्स होते थे डिवाइडर पार करके. आई विल गिव यू वन एक्सीडेंट जिसमें एक बस ने डिवाइडर पार करके चली गई तो सामने से जो गाड़ी आ रही थी उस पर यू नो इट कोलाइडेड. सिमिलरली बहुत बार ये देखा गया है कि बिकॉज रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं कि लोगों को लगता है कि अब इसमें कोई स्पीड नहीं है. एक तो आप लोग गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी देते हैं तो देयर इज़ नो स्पीड लिमिट. वो टू बोलती भी रहती है, स्टिल पीपल यू नो दे गो बियॉन्ड देयर स्पीड लिमिट्स. और एक स्ट्रेच आता है जहाँ पे 4 लेन प्रपोज्ड है, अभी वो 2 लेन है, लेकिन वहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं. हम वहाँ पे हर 50 किलोमीटर में इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लेकिन वो जब पुलिस को देखते हैं तब तो वो स्लो कर लेते हैं या कोई चालान का, ये हम सब करते हैं. इट्स नॉट मैं आप हम सब करते हैं शायद. और जैसे ही वो चला जाता है तो अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लेते हैं दैट इट लूजेस कंट्रोल. तो हम कितने भी पुलिसकर्मी लगा लें, लेकिन जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा दिस सिंपली ये आंकड़े कम नहीं होंगे. क्योंकि जयपुर ग्रामीण राजस्थान में वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स था जिसके एक्सीडेंट्स के आंकड़े बहुत बढ़े हुए थे, इसलिए हमने वहाँ पे एक अभियान चलाया जो हमारे IG साहब अभी भी हैं राहुल प्रकाश सर, उनके नेतृत्व में, और हमारे PHQ और DG सर के काफ़ी फोकस रहता है कि हम ये रोड एक्सीडेंट्स कम कराएं. तो हमने एक लेन ड्राइविंग अभियान चलाया था. ये उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं. इसमें पुलिस जो आप देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड लेन व्हीकल्स के लिए होती है और फर्स्ट लेन ओवरटेक के लिए होती है, विच इज़ एक्चुअली हाउ आइडियली इट शुड वर्क. इससे हमारे एक्सीडेंट्स में कमी आई है. ये एक छोटा सा वीडियो है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड लेन में और थर्ड लेन में कैसे ये गाड़ियाँ चल रही हैं. साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा ट्रैफिक एड सेंटर्स खुले हैं, दुर्घटना सहायता केंद्र, जो पूरे राजस्थान में 20 होंगे और जयपुर में 2 हैं. एक महिला के आसपास खुलेगा और एक चंदवा जी में हमने
फिनोवा कैपिटल के साथ मिलकर CSR में एक दुर्घटना केंद्र ये सेंटर खोला था। आप थोड़ा सा इसको देखें, इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, सहायता केंद्र सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है आपातकालीन बचाव उपकरण। यहाँ आधुनिक कटिंग टूल्स और रेस्क्यू मशीनें उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। कंप्यूटर यहाँ एक व्यवस्थित नियंत्रण व्यवस्था भी मौजूद है, जिससे समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे यह चेन सॉ है। इसके माध्यम से दुर्घटना के दौरान पेड़, लकड़ी या बाधाओं को तेजी से काटकर राहत एवं बचाव कार्य को सुचारू रूप से किया जा सकेगा। यह रेसिप्रोकेटिंग सॉ है। इसके माध्यम से दुर्घटना में फंसे वाहनों या बाधाओं को तेजी से काटकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। यह रेस्क्यू कट ओ ऑफ मशीन है। इसके माध्यम से दुर्घटना में फंसे वाहनों या लोहे के हिस्सों को तेजी से काटकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सा किट, स्ट्रेचर, परावर्तक जैकेट्स और सुरक्षा कोन्स भी उपलब्ध हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा यह पहल आमजन की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित है। हर सेकंड की कीमत है और हम तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारा यही एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हमारी ये एक प्राथमिकता रहती है कि किस तरह से अगर हम एक्सीडेंट रोक पाएँ, और अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो प्राथमिक उपचार और हॉस्पिटल किस तरह से जल्दी पहुंचाएं। तो घायलों की संख्या में कैसे कमी लानी है और मृतकों की संख्या में कैसे कमी लानी है, ये एक काम ही नहीं बट एक पुण्य का कार्य हो जाता है। कि और पुलिस में हमने देखा है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आसपास के गांव के लोग आ जाते हैं, फिर हम वेट करना पड़ता है कि अभी कटर आ रहा है, अभी कोई लाइट लेके आ रहा है, अभी कोई JCB लेके आ रहा है। क्योंकि जब हाईवेज पे मैसिव एक्सीडेंट्स होते हैं, भगवान न करे आप लोगों को कभी देखना पड़े, तो इट इज़ वेरी ब्रूटल। तो उस समय क्या होता है, बॉडीज़ भी फंसी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ एकदम इस तरह से हो जाती हैं कि उनको कटर से निकालना, लोगों को त्वरित मेडिकल हेल्प देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एवरी सेकेंड मैटर्स। तो इस तरह का हम चाहेंगे, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सरकार यही चाहती है कि प्रत्येक हाईवे के थाने पे, जहाँ भी हाईवे के थाने हैं या चौकियाँ हैं जो हाईवे पे खुली हुई हैं आप सबकी सुरक्षा के लिए, वहाँ इस तरह के उपकरण हों और पुलिसकर्मियों को इनका प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे कि ये आपने देखा, ये उपकरण हमने एक प्राइवेट कंपनी के साथ CSR के माध्यम से लिए थे और यहाँ पे हमने इन जवानों को ट्रेनिंग दिलाई है, इनकी अपकीप, इन इंस्ट्रूमेंट्स की अपकीप के लिए भी। तो मेरी तरफ से मेरे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सड़क दुर्घटना एनफोर्समेंट खाली पुलिस का दायित्व नहीं है, ये आप सबका दायित्व है। पुलिस आपके चालान अपने शौक के लिए कतई नहीं काटती है, हम बुरे ज़रूर लगते हैं आपको, पर हम किसी कारण की वजह से, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओवर स्पीड के चालान होंगे, सीट बेल्ट के चालान होंगे, या मोबाइल फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर हम जितना एनफोर्समेंट, जितनी परिवर्तन की कार्रवाइयाँ अपनी बढ़ाएंगे, उतना दुर्घटना में कमी आती है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री शार्विक शाह जी, चेयरपर्सन FADA राजस्थान, श्री सई गिरधर जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट FADA, श्री शहर्ष दामानी जी, CEO FADA। कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय अतिथियों के साथ मिलकर रोड सेफ्टी क्रिएटिव्स का अनवीलिंग करें। सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच इन तीनों का मैं स्वागत करना चाहूँ। बिफोर दैट, मे आई रिक्वेस्ट श्री अमरप्रीत बत्रा जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर SK फाइनेंस, कि आप कृपया अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच मैं गुजारिश करती हूँ श्री अमरप्रीत बत्रा जी को यहाँ पधारने के लिए। It's an honor to be at Vyapar Rajasthan 2026. It's an FADA Rajasthan chapter, and I truly appreciate, or even our organization appreciates, such activities which been conducted by FADA in across India. So among the leaders who truly drive India economy strength. So thank you again for having us over here.
So my sincere regards to all the dignitaries, the police department, the FADA team, and this team industry members. Being an SK, our long association with FADA reflects a shared vision of strengthening Indian automotive and mobility ecosystem. So FADA Rajasthan Vyapar Chapter 2026 truly represent the backbone of our Indian and over to our Rajasthan economy. Rajasthan is a state which stands for its resilience and enterprise, and at SK is deeply rooted over here, and probably many of our associates know about this. We have started over 3 decades. It's been 31 years of an SK giving a largely livelihood to the individuals. Today we operate across 12 states, 2 union territories, and 700 plus branches, in which largely we are presented in rural areas. But beyond our scale, our true strength is trust, which we truly believe, and which supports to become an individual and an entrepreneur, a first-time borrowers, business and the families. So why we are here? We are here not being as a finance company, but it is more of a road safety awareness partnership. So thank you FADA for giving this opportunity. Over the last 3 decades, SK Finance has financed 30 lakh plus vehicle, from which 50% are from Rajasthan, which is a true good numbers. These vehicles this only represents a dream, livelihood, and the future. That's why our responsibility, it's not only for financing, it goes beyond that. And it reflects more often protecting the lives. We keep on doing some activities across India onto the road safety. Few of them, many of you have seen even into Jaipur, by distributing the barricades and the traffic booths. And recently we have started a digital awareness camp within local police, traffic police, and onto the social media. We have done many of the helmet distributions, even on to Women's Day to the women traffic police in our past years. So, and also recently we have done an activity which is called a Yatayat Rath Yatra, which has been conducted in UP Saharanpur, where we got a massive response, and we have seen the people actually holding their self and seeing the video over there to understand why this safety is important for everyone. Why does this matter? The statistics, Rashi ma'am already shared, so I will not take that up, but this is really important. Such huge casualties of an individual which are there into early ages, they were the people who were the earning members of them. It was really has saddened to our part, and we have to do something for providing such tools and making them aware to every individuals. So this is not a safety concern for everyone. It is much beyond that. It is a responsibility or an issue, rather it's an issue of an economy, business, and the families as in our social responsibility. So all of us here, the industry, dignitaries, financiers, dealers, have the power to influence the behavior. And we truly believe into that, how we can change the life of an individual in making them aware. So let's make road safety a most powerful aware tool by different mode of awareness method. It's just not a compliance, it's beyond that.
it's an organization value which we have to kept into our value, organization's value. And keep training and making the dealers aware, even at the workshop levels, we can do that. And a message to every individual vehicle being sold. Because the habit which we build will definitely define the tomorrow's culture. So let's just not grow the vehicle industries. Let's make the people more aware of the safety, road safety largely. So this is about this, and we truly want to associate with the association of, rather than FADA for giving us such opportunities. And thank you everyone, and we'll love to associate with the local police department also and keep on doing the things. Thank you everyone. आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, IAS ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजस्थान, कृपया आप मंच पर पधारें। श्री शार्विक शाह जी, चेयरपर्सन FADA राजस्थान, श्री साई गिरधर जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट FADA, श्री शहर्ष दमानी जी, CEO FADA, कृपया आप मंच पर पधारें और हमारे अतिथियों के साथ मिलकर रोड सेफ्टी क्रिएटिव्स का अनवीलिंग करें। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच ये क्रिएटिव्स का अनवीलिंग हम करेंगे। While the creative is coming on the stage, ma'am, and on behalf of everyone here, मैं एक ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक सड़क सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और हम आपको एज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डीलर्स ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे हम सब डीलर्स मिल के इसके ऊपर प्रयास करेंगे। जब कोई नई गाड़ी हमसे ले जाते हैं तब हम उनसे शपथ भी दिलाते हैं और इसको करते रहेंगे, सारे सेफ्टी गियर के बारे में अवगत कराएंगे। उसके अलावा जहाँ भी जब भी ज़रूरत हो, वी ऑल द एसोसिएशन इज़ मतलब हम कमिटेड हैं कि वी विल गिव कंप्लीट सपोर्ट टू द डिपार्टमेंट एंड फॉर दिस कॉज। सो येस, वी विल कंटिन्यू टू दिस। सड़क सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और मैम ने बहुत ही कैटेगोरिकली हर चीज़ को समझाया है और कहाँ पे कितना रिसोर्स उसमें एग्जॉस्ट होता है। ज़ोरदार तालियों के बीच में ये अनवीलिंग। ओके, दिस इज़ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबडी। मैं अनुरोध करती हूँ श्री जयेश धूत जी से कृपया मंच पर पधारें। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस राशि डोगरा DDG IPS, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CID क्राइम ब्रांच राजस्थान। थैंक यू मैम। श्री अमरप्रीत बत्रा जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर SK फाइनेंस लिमिटेड, आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में इनका फेलिसिटेशन। May I request all the three of you to come forward for a photograph?